Hey everyone, welcome back to my channel, and in this video we are going to be talking about all the tips and tricks that I use in order to ace my 12th boards. So in short, this video is going to be the 12th grade boards guide you will ever need. So I had PCM and English and computer science in my 12th boards. So I will be talking about that subject, and if you are from some another board, I think we all have English, so that can be helpful to you, because for English personally, it is one such subject for which I did not have a lot of time also, and I have done it in like a really short span of time. So I think it can help you out in a lot of ways. And computer science also, if you have it, a lot of commerce friends of mine had computer science, and humanities friend do take it, so you can also refer to that. So we will be starting ahead with it. So the first one is going to be about physics. So we all know that physics is the most dreadful subject. हम सबको ही डर लगता है physics से. Like all the subjects could be on track, but physics, it scares the hell out of us. So like same situation ही था, there was nothing different. So I've jotted things down about all I did. So I will be just covering all the points from this page, so that I don't miss out at all on anything. So first of all, देखो, I'm going to be very honest. I'm not going to say कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा. फिजिक्स जो तुम्हारे 12 बोर्ड्स में आ रही है ना, वो थोड़ी जेई मेंस लेवल तक की आ रही है. मतलब तुमने 2024 का पेपर देखा होगा, 2025 का पेपर देखा होगा. इट हैज़ बीन till JEE mains level. So we have to be prepared for that. We have to have that conceptual clarity in order to ace physics up to that level. And when I say this कि JEE main level की आ रही है, तो JEE main बहुत tough नहीं है. JEE main is still like below JEE advanced, and JEE main का level तुम अचीव कर सकते हो. तुम किसी भी स्ट्रीम के हो, PCM या PCB या PCMB whatever. So वो करना पड़ेगा if you really want to like score that 95 plus, वो वाला मार्क अचीव करना है. So this is what you have to do. So you have to cover theory up to JEE level. तो तुम थियोरी के लिए you can refer to your school teacher, अगर वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या तुमको तो समझ आ रहा है, then it's good, well and good. If you have got tuitions, you can cover from that. And if you are studying from YouTube channels, you can cover from that. And if you'll ask about my personal recommendation, या मैंने जो यूज़ किया था, I won't recommend, but I will tell you where I studied from. So it was not at all like कि मैं fixed teacher से पढ़ता था. मैं different chapters के लिए I had my different set of teachers. But राजवंत सर was one such teacher जिनसे overall मैंने बहुत सारे chapters किए हैं. Apart from optics and that magnetism का unit, the chapter 4.1 मैंने किया है. So you can refer to him, या फिर तुम अपना boards level पे पढ़ के you can watch that JEE mains का one shot. That will be helpful. तुम notes बना लो and you better understand the approach of all the questions. And a lot of things you would not need, but देखो that you will realize when you practice for your PYQs. But एक point पे तुम सब cover करके रख लो. The next big thing is the next thing is about practice. So once you are done with your theory, समझ लो तुम्हारा conceptual clarity एकदम पक्के से हो गया है. So तुम्हें chapter wise side by side practice करनी जानी है. So the first and foremost thing जो हम करते हैं वो NCERT है. तो NCERT के तुम एग्जाम्पल्स कर लो, ऑल द एग्जाम्पल्स, एंड NCERT के क्वेश्चन कर लो बैक एक्सरसाइज के. कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े इरेलीवेंट हैं, बट इट वॉज फॉर मी, क्योंकि मेरे बुक में एडिशनल एक्सरसाइज थी विच आई डिड नॉट फाइंड हेल्पफुल दैट मच. बट देखो बहुत सारे क्वेश्चन हेल्पफुल भी हैं. सो यू कैन जस्ट डू दैट. इट वॉन्ट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विद. मतलब इससे हो नहीं जाएगा, बट इट इज़ लाइक यू शुड डू इट. इट इज़ एडवाइजेबल. देन व्हेन यू आर डूइंग ईच चैप्टर, तो हर चैप्टर के बाद PYQs लगाने हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि जब तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो गया तब PYQs लगाओ, बिकॉज 12th का सिलेबस इज सच अ वास्ट सिलेबस. तो तुम उसके साथ उसके बाद लगाओगे तो मतलब थोड़ा तुम भी भूल जाओगे. सो फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस चैनल विच इज़ 3 Steps Academy. उस पर PYQs के प्रॉपर वन शॉट्स अपलोडेड हैं. यू कैन रेफर टू दैट. यू कैन ऑल्सो रेफर टू अरविंद अकेडमी. वहाँ पे 2024 के एंड पास्ट ईयर के PYQs हैं. इट्स लाइक अ शॉर्ट 2 hour लॉन्ग वीडियो, बट वैरायटी बहुत है उन क्वेश्चंस में, तो तुम वो देख सकते हो. एंड दैट इज़ इट. एंड अगर तुमको कोई रिसोर्स चाहिए कि क्वेश्चन बैंक वगैरह रेफ़र करना है, तो PCM तीनों के लिए तुमको बहुत सारे ऐसे ओसवाल या एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे मार्केट में. बट मैंने पर्सनली यूज़ ही नहीं किया है. मैंने एक ऐप है, मैं यहाँ पे लगा दूँगा उसका लोगो,
दिस इज़ समथिंग लाइक लेबकिन बुक्स करके था। मुझे टेलीग्राम से उनके ऐप के बारे में पता चला था। वहाँ पे इट इज़ वेरी अफोर्डेबल ऑनलाइन PDFs हैं एंड इट इज़ ऑल सॉर्टेड आउट सेट वाइज, तो तुम वो रेफर कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ जेईई मेंस के PYQs। तो जब तुम्हारा 12th बोर्ड्स का सिलेबस हो जाएगा तब तुम्हें जेईई मेन के PYQs करने हैं। एंड तुमको ऐसा नहीं है कि सारा लेके बैठना है करना है। यूट्यूब पे तुमको सलीम सर की वीडियोस मिलेंगी जो कि 2 आवर या 2 से 3 आवर की है, और वो जेईई मेंस के PYQs कवर्ड हैं उसमें। लाइक इट वाज अ मैराथन सेशन और उसका काट के डाला हुआ है, तो तुम वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एंड तुमको खुद से सब कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे ही इज़ अप्रोचिंग द क्वेश्चन एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट विद द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड। एंड तुम्हारे लिए मैं ये प्रॉपर है ना PDF मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में इफ़ यू विल नीड। एंड जब तुम्हारे सिलेबस हो जाएं तब कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम डायमंड क्वेश्चन की सीरीज़ देख सकते हो अभिषेक साहू सर के चैनल पे। इट इज़ अ वेरी लाइक अ गुड सीरीज़ जहाँ पे उन्होंने बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किए हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इट विल हेल्प यू आउट। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि NCERT एग्जाम्पलर फिजिक्स से करनी है, तो नहीं, फिजिक्स के NCERT एग्जाम्पलर बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड तुम उसके बाद जब सिलेबस कवर हो जाए बहुत सारी प्रैक्टिस करो। यू नो जो भी तुमने PYQs कर रखे हैं उन सबको रिवाइज करो। तुम वो जो PDFs हैं या तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है बार बार उसको करते रहो। एंड तुम पास्ट ईयर क्वेश्चन के जो 10 सेट्स होते हैं मतलब आई थिंक 5 सेट्स होते हैं और 3 सबसेट्स होते हैं, तो 15 हो गया। और कंपार्टमेंट का भी, वो सब को तुम एक प्रॉपरली लेके बैठो एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे टाइमर लगा के ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन जस्ट सॉल्व एंड गेट एन आइडिया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो तुम मार्किंग स्कीम को रेफ़र करो। जो मार्किंग स्कीम आती है ना CBSE की, वो रेफ़र करते हुए तुमको अपने डेरिवेशंस वगैरह बनाने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेरिवेशन पे। तो क्या तुम्हें डेरिवेशंस करने चाहिए? देखो, डेरिवेशंस मेरे पेपर में बहुत कम आए थे एंड हमारे ईयर में डेरिवेशंस कम ही आए थे, बट लेट मी टेल यू डेरिवेशंस तो करने ही हैं बिकॉज यू नेवर नो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो उसके लिए मैंने रेफ़र किया था, मैं राजन सर से पढ़ा था अपने कॉन्सेप्ट। तो आई यूज़ टू जस्ट अंडरस्टैंड डेरिवेशन, क्योंकि दिस इज स्टेप एंड मैं अपने वर्ड्स में तो लिख ही लूँगा, इतनी तो इंग्लिश हम सबको आती है। एंड रे ऑप्टिक्स वॉज वन सच चैप्टर जहाँ पे मेरे को है ना बहुत प्रॉब्लम आई थी इन टर्म्स ऑफ दोज डेरिवेशंस। मैं एक दिन पढ़ता था, दूसरे दिन आई यूज़ टू फॉरगेट इट। सो ये एक चैनल है फिज़िक्स बाबा करके, मतलब पहले उसका कुछ फिज़िक्स बाबा नाम था, अभी शायद edu+ समथिंग हो गया है। वहाँ पे सर ने एक प्लेलिस्ट है उस पर अपलोड कर रखा है एंड ही हैज़ टोल्ड यू द वे टू अप्रोच दोज डेरिवेशन, तो उससे वो बहुत ईजी हो जाएगा। एंड तुमको मैं बताऊँ ऑप्टिक्स के लिए मैंने कौन से टीचर को रेफ़र किया था, तो मैंने तमन्ना चौधरी मैम के नीट के लेक्चर्स देखे थे। इट वॉज सम 7 लेक्चर लॉन्ग सीरीज, तो वो मैंने देख लिया था। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लॉट डिटेल्ड बिकॉज मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग एंड यू जस्ट जॉट इट डाउन। अब हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो कि है मैथमेटिक्स। वेल मैथ्स के लिए 12th में तुम्हें बहुत ज़्यादा साइड बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लोग RD शर्मा करने लगते हैं, लोग ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं। ट्रस्ट मी, ये सब ज़रूरत नहीं है। RD शर्मा तो मत ही करो, इट्स अ वेरी थिक बुक एंड आई डू नॉट रिकमेंड, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते ज़्यादा। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स शुड बी यू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो उसके लिए तुम अपने टीचर्स रेफ़र कर सकते हो। मैंने NV सर के 1 शॉट्स देखे थे, वो JEE लेवल हैं, आई एग्री टू दैट JEE लेवल है, बट मैंने उसको बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा था और इट वॉज प्रिटी गुड। तुम NV सर के साइड बाय साइड कोई और टीचर के 1 शॉट देख सकते हो। फॉर एग्जांपल उशांक सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं एंड ही हैज़ लाइक really taught well according to the boards level। एंड तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए देयर आर सम कैलकुलस के चैप्टर्स जो तुम JEE लेवल कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग एंड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम यू विल बी एबल टू एटलीस्ट अप्रोच इट, यू विल गेट द आंसर। तो उसके लिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि 12th ग्रेड में तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक कि इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो आएगा तो मैं ये टाइप कर लूँगा। इट्स अबाउट आई हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड ये कॉन्सेप्ट अगर किसी और क्वेश्चन में लग रहा है आई विल बी एबल टू फिगर इट आउट। तो उसके लिए तुम कॉन्सेप्ट समझो। तो तुम देखो, मैं चैप्टर वाइज बताऊँगा इसमें। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस के लिए क्या करना चाहिए, तुम जिस भी टीचर से कर रहे हो समझ लो एंड देन तुम है ना NCERT करो एक बार एंड जो पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं एक एक सेट के
सारे के सारे क्वेश्चंस कर जाओ तुम, एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ. ओके, मतलब रिलेशंस एंड फंक्शंस इतने में ख़त्म हो जाएगा. एंड नाउ नेक्स्ट चैप्टर इन इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, विच इज़ लाइक, ये चैप्टर का तो बहुत सारा पोर्शन कट गया है, बट मैंने डिलीटेड भी किया है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी यूज इन डिफ्रेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन में इट इज़ गोइंग टू बी यूज. सो फॉर दैट तुम वो पूरी NCERT करो एंड NCERT एग्जाम्पलर करो, एंड दैट्स इट, यू आर डन. एंड स्पेशल फोकस देना तुम रेंज एंड डोमेन के क्वेश्चन पे. नाउ थर्ड चैप्टर इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, NCERT करो, पास्ट ईयर के PYQs कर लो, यू आर डन. एंड नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज continuity and differentiability, NCERT एग्जाम्पलर, एंड दैट्स इट. लाइक NCERT एग्जाम्पलर कर लिया तो ये मोर देन इनफ है, क्योंकि बोर्ड्स में भी जो PYQs तुम्हारे आए हुए हैं वो वही है जो NCERT और एग्जाम्पलर में है, और इस चैप्टर में यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स. द नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, NCERT प्लस एग्जाम्पलर प्लस PYQs फॉर केस स्टडी. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज इंटीग्रेशन, सो लाइक इंटीग्रल्स, तो NCERT प्लस एग्जाम्पलर इंटीग्रल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये नहीं आएगा, वो आ सकता है बोर्ड्स में. सेम मेरे साथ हुआ है, मुझे लगा ये तो कहाँ ही आएगा, बट दैट वाज आस्क्ड इन माय बोर्ड्स, एंड वो थैंकफुली मैंने करके रखा था एंड इट हेल्प मी आउट. सो तुम सारे क्वेश्चन कर लेना, मोर देन इनफ. Now next chapter is I think area under curve, which is called application of integrals, NCERT plus PYQs, you are done. Then the next chapter was I think differential equation, NCERT is enough, way more than enough. तुम PYQs करना चाहो कर लो, ऑर्डर डिग्री वाले कुछ PYQs कर लेना, बाकी NCERT इज़ वेरी वेरी सफिशिएंट. द नेक्स्ट चैप्टर इज़ डिफरेंशियल के बाद वेक्टर एंड 3D. तो इस पर मैं स्पेशली बोलूँगा, नेहा अग्रवाल मैम की मैथमेटिकली इंक्लाइंड पे एक वीडियो है पॉइंटिंग टुवर्ड्स बोर्ड्स, तुम वो कर लेना. उसमें एवरी सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड हैज़ बीन कवर्ड, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड. एंड तुम्हें डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो NV सर की वन शॉट देख लेना इनके लिए. थोड़ा लंबा है बट यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल फॉल इन लव विद वेक्टर एंड 3D. ट्रस्ट मी, वेक्टर एंड 3D तुमको बहुत सॉर्टेड सा लगेगा. एंड देन इसमें तुम चाहो PYQs कर लो, लाइक PYQs लाइक वेरी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट तुम कर लेना थोड़ा जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज LPP के लिए NCERT करो, एंड PYQs में केस स्टडी टाइप की रहती है ये, जिसमें तुम्हें ग्राफ दे देंगे, यू हैव टू रिड्यूस द कॉन्स्टेंट, वो कर लो. नाउ नेक्स्ट चैप्टर वॉज प्रोबेबिलिटी के लिए राघव सर की वीडियो अपनी कक्षा पे, देयर इज लाइक अ लॉन्ग वीडियो, तो तुम वो रेफर कर सकते हो एंड इट इज़ रियली ग्रेट. तुमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. बेस थ्योरम बहुत लोगों को प्रॉब्लम करता है, पर्सनली मुझे नहीं किया बिकॉज आई अंडरस्टूड इट सो वेल. तुम ट्री डायग्राम समझो एंड यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट क्वेश्चन ट्राइंग टू से, एंड उसमें तुम्हें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है. पर्सनली मैंने सिर्फ NCERT किया, मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कॉन्सेप्ट, एंड उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया. बट आई वुड स्टिल रिकमेंड तुम बोर्ड्स के जो आते हैं ना केस स्टडी, वो तुम देख लो एंड इट वुड हेल्प यू आउट. नाउ वी आर डन विथ मैथ्स. मैथ्स बहुत चिल है 12th का, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि मैथ्स you just have to understand. तुम्हें अगर अंडरस्टैंडिंग है तो तुम कर ले जाओगे क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस आर डी शर्मा एंड XYZ बुक, दिस बुक दैट बुक के पीछे मत भागो जितना है ना. लेट योर रिसोर्सेज बी लिमिटेड, दैट वाज वन थिंग आई फॉलोड. नाउ वी आर कमिंग टू माई फेवरेट सब्जेक्ट, एटलीस्ट 12th में मेरा फेवरेट ही था, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री के लिए भी तुम्हें स्टेप 1 है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए. तो यू कैन रेफर टू सम टीचर, तुम्हारे कोचिंग वाले सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, टीचर मतलब स्कूल के टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे किसी से पढ़ रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वेल एंड गुड, यू आर गुड टू गो ना. बट अगर तुम मेरे रिकमेंडेशंस चाहोगे तो मेरे शॉर्ट्स के सेक्शन में जाना, मैंने बना के रखा है प्रॉपर वीडियो अबाउट ऑल द टीचर्स आई वुड रिकमेंड यू, सो वो देख लेना तुम, इट वुड हेल्प यू आउट. नाउ प्रैक्टिस के लिए तुम NCERT की एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इन टेक्स्ट बैक क्वेश्चन, एंड NCERT एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन. NCERT प्लस एग्जाम्पलर हो गया तो तुम्हारा यू आर वेरी सॉर्टेड फॉर केमिस्ट्री. एंड NCERT रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट जस्ट टेल यू कितना इंपॉर्टेंट है NCERT की एक लाइन समझना. तो तुमको इसको मैं रेफरेंस के लिए भी दिखाऊँ हाउ आई डिड. सो दिस इज माई केमिस्ट्री का बुक, आई हैव जस्ट केप्ट इट बाय साइड कि तुम्हें रेफरेंस दे सकूँ. मैंने हर सारे के सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से रीड किया था, एंड आई लिटरली फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस बुक. आई विल जस्ट शो.
सो या यू कैन सी हाउ आई हैव फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी लाइन एंड मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा एंड इट हैज़ हेल्प मी आउट अ लॉट. एंड इफ़ यू आर वांटिंग ये सारी नोट्स क्या हैं बीच में, सो इट इज़ अबाउट समथिंग जो मुझे लगता था आई नीड टू लर्न अबाउट दिस हार्मोन्स एंड स्टफ, एंड मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई वुड ऑलवेज फोकस ऑन देम, एंड उसके लिए मैं नोट्स बना लेता था एंड उसको इंसर्ट कर देता था विद इन द बुक, सो दैट व्हेनेवर आई एम रिवाइजिंग मेरा हो जाए. एंड सारे के सारे जो कन्वर्जन्स के लिए भी नोट्स हैं वो मैंने बीच में ऐसे रख दिए थे कि इफ़ आई एवर नीड की कन्वर्जन में क्या क्या हेल्प करेगा. सो इट इज़ वॉट आई हैव डन. So just that was the reference I was trying to give, and here also you can see all these reactions and stuff. All that I felt was important, वो मैं रख लेता. एंड ऑल्सो वाइल आई वॉज डूइंग दीज PYQs मेरे को कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते थे जो मेरे को थोड़ा लगता था ओ व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ गुड क्वेश्चन, ओके दिस वॉज आस्क्ड, मैं थोड़ा फॉर्मल कर जाता तो मैं उसको इंसर्ट कर लेता था अपने बुक्स में टॉपिक्स के बिसाइड में, सो दैट आई हैव दिस आंसर रेडी किया है तो मैं कर लूँ. एंड उसके बिसाइड मैंने NCERT एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन किए हैं. एंड देन PYQs तुम करना चाहो तो कर लो, एंड नहीं भी करना चाहते सो आई वुड से कर लो, बिकॉज PYQs बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं केमिस्ट्री में. एंड केमिस्ट्री के लिए तो मैं सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखी है, यू कैन स्टिल रेफर टू दैट नाउ. और अगर तुम्हें कन्वर्जन में थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो साक्षी बोरा मैम की एक वीडियो है ऑफ कन्वर्जन, वो 1 शॉट है, यू कैन रेफर टू दैट, एंड वो तुम खुद पॉज करके प्रैक्टिस करो. एंड NCERT के जितने भी कन्वर्जन है, NCERT एग्जाम्पलर के जितने भी है, एक जगह जॉट डाउन कर लो, सारे प्रैक्टिस कर लो 1 से 2 बार, एंड यू आर सॉर्टेड. मतलब कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं. and there are some types of questions, for example aldol condensation वाले थोड़े difficult लगते हैं, तो you have to have this performer in your mind कि अच्छा यहाँ से यहाँ convert करने को आएगा, इस compound से इस compound में, तो मुझे aldol condensation याद करना है, and aldol तुम्हें हर पॉइंट पे याद करना है every time of reaction, तो उस पॉइंट से तुम कर सकते हो. नेम रिएक्शंस के लिए वही NCERT रीडिंग करो, एंड रिएक्शंस याद नहीं होती हैं, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है तो तुम लिख के कर लो. और पर्सनली अब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी रिएक्शन याद करने में, बट अगर तुम्हें नेम रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो अबाउट सम ट्रिक्स, तुमको मिल जाएगा भरत पांचाल सर के चैनल पे. भरत पांचाल सर ने PYQs की भी वीडियो अपलोड कर रखी है, एंड प्रैक्टिस की भी, न्यूमेरिकल्स की भी, तो वो तुम रेफर कर सकते हो इफ़ यू हैव फ्री टाइम. नाउ वी आर कमिंग टू इंग्लिश. ना इंग्लिश के लिए भी मैंने सेपरेट स्टडी गाइड बनाया है, लाइक 12 मिनट की एक वीडियो है मैंने बनाया, बट स्टिल इन दिस वीडियो मेरे को थोड़ा तो बताना है, तो आई विल जस्ट टेल यू. इंग्लिश में द स्टेप 1 इज़ टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, फॉर दैट यू कैन रेफर टू एनी वीडियो एंड NCERT की रीडिंग कर सकते हो. स्टेप 2 इज़ टू गैदर वोकैब्स. तो तुम कोई भी बुक है तुम्हारे पास, यू हैव दिस एक कोई भी बुक, कोई भी रेफरेंस बुक जहाँ पे वोकैब्स के बारे में अच्छी वोकैब्स है, या वाइल रीडिंग यू जस्ट पॉइंट आउट कि अच्छा ये वोकैब्स है, सो यू बेटर एक्यूमुलेट दैट एट अ पॉइंट, या कहीं से तुम रेफर करो, बिकॉज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे तुमको एक वोकैब दे देंगे एंड यू वुड बी आस्क्ड कि कौन से अदर सेंटेंस में इट मीन्स द सेम एज इन दिस सब सेंटेंस, या कौन से अदर सेंटेंस में इसका ये मतलब नहीं हो रहा है. सो यू जस्ट हैव टू नो बेसिक कि तुम वो टाइप के क्वेश्चंस कर सको. तो कैप्स पे फोकस करना, एंड हैव योर प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ आंसर्स रेडी कि ये आएगा तो मुझे ये लिखना है. हैव योर कीवर्ड्स रेडी. हर एक चैप्टर के लिए तुम नोट्स बना सकते हो अबाउट कीवर्ड्स, एंड आई विल जस्ट शेयर, लाइक ये मेरी नोट्स थी, एंड देयर इन मैंने सारे टाइप के चैप्टर्स के लिए आई हैव रिटन all the tips that I had used, and all the answers that I would ever write in my words. तो मैंने इस नोटबुक में लिख लिया था कि एक दिन पहले, या whenever I have this time I properly revise these stuffs and it would help me out. हर एक पोम के लिए you should have a list of lines, क्योंकि this line sounds really well, this if I insert this, for example a thing of beauty is a joy forever, maybe like beauty lies in the eyes of beholder, and a lot of proverbs and stuff you have to use in your answer, and it would help you to improvise on your answer writing skills.
तो आंसर राइटिंग के लिए बहुत टाइम तो नहीं होगा तुम पे, बट यू कैन स्टिल जस्ट मेक अ पॉइंट एंड ऑलवेज ट्राई टू स्टडी इंग्लिश इन इंग्लिश, बिकॉज अगर तुम इंग्लिश को हिंदी में पढ़ते हो देन इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ टाइम ट्रांसलेटिंग थिंग्स इन बैक टू इंग्लिश. सो इंग्लिश के तुम स्टूडेंट्स हेवन का यू कैन रेफर टू दैट चैनल, इट हैज़ ऑल द इंग्लिश थिंग्स इन इंग्लिश. एंड तुम फर्स्ट टाइम के लिए कर सकते हो हिंदी में भी, बट it is always advisable you study English in English. And the next thing is writing section के सारे formats जानो, and because you are in 12th you have already passed so many grades with English, so you know what to write. And अगर तुमको problem भी है तो you can just learn some lines. For example, notice में तो it is always known कि it is hereby informed that this is, so you have to know. And then report writing में also you know a lot of lines कि ये लिखना है, and you get a lot of cues कि ये तो तुम लिख दो. इन्विटेशन में इट्स अ फिक्स फॉर्मेट, देयर इज नथिंग टू वरी. रिप्लाई में नथिंग टू वरी. एंड देन आर्टिकल अगर तुम करना चाहो तो करो, बट आई नेवर एडवाइज टू डू आर्टिकल्स बिकॉज it's a lot of it's a thought provoking topic that is given and you have to think, and a lot of time can go into that, but it is on you तुम क्या अच्छा करते हो. And then writing section में you have this job application which you know. And reading comprehension के लिए the practice is only key, and उसके लिए तुम past year questions को रेफर कर सकते हो. तुम खुद से टाइमर लगाओ, 35 मिनट का टाइमर, 2 पैसेज कर डालो बिफोर योर बोर्ड्स आर लाइक नॉकिंग द डोर्स. एटलीस्ट 10 पैसेज प्रैक्टिस कर लो, इट इज़ मोर देन इनफ. यू विल हैव एन आइडिया एंड देन यू कैन एस योर पैसेज दैट आर आस्क्ड इन योर एग्जाम. एंड दैट वाज फॉर इंग्लिश. एंड प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है, दैट इज वाई आई एम नॉट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल इफ यू फील ओके. सो नाउ नेक्स्ट थिंग वुड बी अबाउट कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने स्वाति चावला मैम का चैनल रेफर किया था, एंड आई हैड मेड ऑल द नोट्स फ्रॉम हर चैनल, एंड वो सारे के सारे नोट्स मैंने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिए थे बिफोर माई एग्जाम्स. एंड मैं उनके सारे के सारे PYQs लिखे थे, एंड मैंने सैम्पल पेपर को रेफर किया था. स्वाति चावला मैम का जो रॉक इन बोर्ड सीरीज़ है तुमको मिल जाएगा, उसके एक वीडियो के तुम नोट्स बना लो, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो यू हैव टू नो, एंड यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स ऑफ कोड्स कि अगर ऐसा आया तो क्या करना है, अगर ऐसा प्रोग्राम आया तो क्या लिखना है, ऐसा प्रोग्राम आया तो क्या लिखना है. एंड यू विल हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स सॉर्टेड इन योर माइंड, एंड तुम उसके लिए अच्छे से कर सकते हो उनके ही चैनल से. एंड देन मैं सैम्पल पेपर पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करूँगा, बिकॉज सैम्पल पेपर के टाइप के प्रोग्राम्स आ जाते हैं फाइल हैंडलिंग में या स्टैट्स में, तो तुम उसका यू शुड ऑलरेडी नो कि अच्छा इसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है. सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं. तुम्हें फाइल हैंडलिंग थोड़ा टफ लगता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच कि CSV फाइल में क्या करना है, बाइनरी फाइल में क्या करना है, pickle.dump, pickle.load, इन सब का यूसेज क्या है, टेक्स्ट फाइल में क्या करना है. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू रेज. एंड ट्रस्ट मी, कोई ज़्यादा बुक्स नहीं करनी होती उसमें, जस्ट मैम की प्ले लिस्ट इफ यू डन ना, आई माई सेल्फ कैन अश्योर यू कि तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. एंड दैट वॉज ऑल फॉर ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स. एंड इफ यू नीड एनी सेपरेट वीडियो या तुम्हारा डाउट है, यू जस्ट write it down in the comment section. I will be looking forward to it, and thank you for watching the video till the very end. Hope you score really well in your boards, and thank you.